ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਵਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। गुरपूरै मेरी राख लई, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਹਿਲ ਗਈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना, नानक तिन कुरबान। माग सुचे से कांडिया, जिन पूरा गुर मेहरवान। माग सुचे से कांडिया, जिन पूरा गुर मेहरबान। परम सन्मान योग, जुगो जुग अटल, धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो अज माघ महीने की शुरुआत दे विच सतगुरां दा आशीर्वाद लैण वास्ते सतगुरु महाराज जी दे कोल हाज़र होए हो। आप जी ने जो गुरु अर्जन साहब जी ने बख्शिया होया शब्द, उहदा मूल पाठ सरवण कीता है। आओ सतगुरां दी किरपा सदका ही इस पावन शब्द की विचार दे नाल जुड़ना करिए। उस तो पहले जिन्ने भी आप जी गुरु प्यार विच जुड़ बैठे हो, असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, सनातन धर्म दे विच इस महीने नूं बहुत वड्डी महानता दिती गई है कि जिहड़े लोग तीर्थां ते इशनान करनगे जां पराग ते इशनान करनगे इस महीने दे विच, और खास करके अज दे दिन, उन्हां दे सारे पाप उतर जाणगे। पर जो सतगुरु जी ने सानू
ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰ ਲੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਸਤੂਲ ਹੈ, ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੇ। ਜਲ ਧੋਵੇ ਬੋ ਦੇ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਪਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇ ਨਿਤ ਧੋਵੈ, ਇੱਕ ਧੋਲਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਦੇ ਧੋਤੇ ਕਿਸ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਧੋਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲਓ। ਮਾਗ ਮਜਨ, ਮਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ। ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
क्योंकि जो असी संगत करते हैं, संगत विच जुड़ियां हुई रूहां बैठियां हैं, जे साडे कोल नितनेम नहीं हो रहा, जे असी उहदे कोल बैठे हाँ जिहड़ा नितनेमी है, साडा भी नितनेम चल जाएगा, साडा भी चल जाएगा। इसे आपां कहने ना सतगुर संगत दिओ सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम जितावे। यह है गुरु की संगत। हुण आपां कहने शरीरां दा असर शरीरां ते किदां पैंदा है। आ छोटी जी उदाहरण है, बसां दे विच लिखिया हुंदा कि 1 2 3 4 5 सीटां ते सोना मना है, कि उन्हां लोकां ने किराया नहीं दिता हुंदा, किराया वो भी बराबर ही दिंदे आ ना, पर उत्थे सोना मना है पहलियां सीटां ते, क्योंकि पता है जे तुसी सौ गए ड्राइवर सौ जाएगा, ड्राइवर सौ गया फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता की हो जाता है, असर पैंदा ना, नींद का भी असर पैंदा है, तो इत्थे संगत का असर क्यों नहीं पाएगा। तो जिहड़े जीवन वाले आ, भागां वाले अज गुरु साहब कहते हैं आओगे संगत विच, एक नहीं तेरे करोड़ां अपराध खत्म हो जाणगे जदों संगत करेगा। संगत दे विच आउण दी बहानता है। कोट अपराध साध संग मिटै, कोट कोट मतलब करोड़ां, कोट अपराध साध संग मिटे, संत किरपा ते जम ते छुटे। गुरु की किरपा दे नाल इन्हां विकारां तो बच जाएगा। संगत कौन करदा है? गुरु साहब कहते जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए। जिहदे भाग चंगे आ उन्होंने गुरु की संगत मिलती है, क्योंकि बिच संगत हर प्रभ वसे जियो। गुरु साहब कहते बड़ भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटां खावे, बिन भागां सत संग ना लभे, बिन संगत मैल परीजे जी। अंदर इत्थे मैल धोण वास्ते असीं आउने हाँ। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। गुरु साहब कहते ये सरोवर है, ये संगत जिहड़ी है रामदास सरोवर नीका। रामदास का इत्थे अर्थ है राम दे दासां दा, गुरु के भगतां दा, गुरु के सिखां दा ये सरोवर बहुत चंगा है। रामदास सरोवर नीका, जो नहावे सुख कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। ये इशनान करने वास्ते असीं बैठे हाँ। शरीर का इशनान करना बहुत जरूरी है। अगे भी आपां आखिरी विच विचार करांगे। गुरु साहब ने सुचम किहनूं कहा है? साहब महाराज कह रहे हैं कि तेरे वास्ते गुरु की संगत करनी ही माग है। माग मजन, मजन कहते चुब्भी लाउणी, डूंघाई दे विच गहराई दे विच जाओ, कित्थे संग साधुआं, गुरु की संगत विच बैठो। गुरु की संगत विच बैठ के गुरु की सुनी हुई बाणी दी विचार दे नाल जुड़ना करो, तो देखो जीवन दे विच किदां तब्दीली आएगी। माग मजन संग साधुआं, धूड़ी कर इशनान। धूड़ी का अंतरीवी भाव की है? धूड़ी का अंतरीवी भाव है निमरता। हुण असी की करते हैं? देखा देखी करते हैं। असी आए फर्श के उपर हथ मारिया, मत्थे ते मिट्टी ला ली। लोग इहदा व्यापार करन लग गए पंजाब दे विच, जिहड़े डेरे बाबे चलाउंदे हैं ना, मिट्टी दीयां पूड़ियां बना बना के लोगों को भेजनियां शुरू कर दित्तियां भी इहनूं पानी की बाल्टी दे विच पा लो, तुहाडे पाप उतर जाणगे। हो सकदा इदां? सतगुरु कहंदे धूड़ी कर इशनान, अंतरीवी भाव। प्रोफैसर साहब सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का सटीक किया दर्पण, वह पहला भाग तुसीं कदे पढ़िओ। उहदे विच एक उन्होंने हड्ड बीती लिखी है। जलंधर दे विच गुरुद्वारा बस्ती सेख, 6वीं पातशाह का गुरुद्वारा है। उत्थे एक माता रोज़ आउंदी है गुरुद्वारे दे विच। वो लिखते प्रोफैसर साहब सिंह जी की करती है, आके जिन्ने भी जोड़े पए आ सारे जोड़ियां नूं झाड़दी है। ਉਹਦਾ रोज़ का नेम है। चंगी गल है भी साडे अंदर निमरता आ जाए। अंतरीवी भाव इहदा ही है, धूड़ी का भी अंतरीवी भाव। कहना आप पढ़ते ना, दान महिंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाई। तो ਉਹਦੇ अंतरीवी भावना की होएगा? कूड़ा लाल छड्डिए, होए एक मन अलख ते आईए, फल ते वेहो पाईए, जे वही कार कमाईए, जे होवे पूरब लिखिया तो धूड़ तिना दी पाईए, मत थोड़ी सेव गवाई। वो सेवा रोज़ करती माई। अज की देखिया? अज संगत विच गुरुद्वारे ओह बीबी आई है जिहड़ी उहदे घर काम करदी है।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾ ਮਲ ਉਤਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਕੁੱਕਰ ਜੂਠਣ ਮੇ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੁੱਕਰ ਜੂਠਣ ਮੇ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬੇਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇਜ ਹੈ। ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਉਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪ ਹੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਸਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ, ਤਬਲਾ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੇ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਵਾਰ ਹੈ ਦਵਾਰ ਸਵਾਨ, ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ।
कहते जिदन नाम जपेगा काम क्रोध ना मोहिए बिनसै लोभ सवान। ये लोभी कुत्ता जिहड़ा है तेरे जीवन विचों खत्म हो जाएगा। एक पंडित सी, उसनूं किसी ने दसिया कि जंगल दे विच एक बहुत वड्डे महापुरुष आए आ, उन्हां दे दर्शन करन चला गया। पर वो सवाल बहुत करदा सी। सवाल उहदा सी, कहन लगा महापुरुष नूं जदों मिलिया, कहन लगा महापुरुषां नूं आखिया, कहन लगे महापुरुषो मेरा एक सवाल है। कहन लगे बेटा दस। कहन लगा पाप का बाप क्या है? वो कहन लगा बेटा सुनना ही है या प्रैक्टिकल देखना है? वो कहन लगा जी सुनिया तो बहुत है, इनू प्रैक्टिकल करके दिखा दो। वो कहते कल आई फिर आप प्रैक्टिकल करांगे। वो दूसरे दिन चला गया। महापुरुषो मेरा सवाल है पाप का बाप क्या है? वो कहने लगे बेटा ये तो मैं जवाब दिना, पर एक मैं तेनू दसना चाहुंदा, मेरे कोल पारस है। हुण मैं जंगल जाना तो जंगल विच खतरा भी हो सकता। पारस 8 धातां नूं बदल दिंदा, तो वो किते मैनू कोई लुट ना लवे, भी जान का भी खतरा है। पारस भावें कोई भी लै ले, पर जान का भी खतरा है ना। तो मैं किसी नूं देना चाहुंदा, कहना मैनू दे दिओ। वो कहन लगा भी देंगा तो जरूर, पर उहनूं देंगा आ मेरे कोल बकरी है, एक मैं कुत्ता रखिया होया है। कुत्ता जिस भांडे विच दुध पींदा बकरी का, उस भांडे विच जिहड़ा दुध पीएगा उहनूं मैं पारस देंगा। पंडित जी तुसीं पीओगे? कहना कि हरे हरे हरे, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कहते ठीक है चलो कोई होर आएगा उन्होंने दे देंगे। पंडित ने सोचा भी आले दुआले किहड़ा कोई देखदा, आले दुआले किहड़ा कोई देखदा, जंगल 'च बैठे हैं, फिर वो गंगा जल पी लेंगे पवित्र हो जावांगे। कहने लगा जी मैनू दे दिओ। तो उस महापुरुष ने ना उस भांडे विच दुध पाया, तो जदों लगा पंडित पीण ते उन्हें हाथ मार के डोल दिता, तू देखिया भी मेरे कोल पारस है? कहने लगा नहीं, ये है पाप का बाप। सतगुरु कहते लोभी जंत ना जानी अपख अपख सब खाए। लोभी नूं जो मर्जी दे दो उन्हें हजम कर जाना है, पर जिदन नाम जपेगा सतगुरु कहते काम क्रोध ना मोहिया बिनसै लोभ सवान। ये लोभी कुत्ता तेरे अंदरों मर जाएगा, तो अगे प्राप्ति होएगी। सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जदों सच्चे दे मार्ग ते चलेगा, परमात्मा दे मार्ग ते चलेगा, दुनिया तेरी शोभा करेगी, उस्तत करेगी, पर इहदे विच फसना नहीं है। क्योंकि बंदे शोभा होंदी बंदा फिर हंकार दे विच आ जांदा कि मैं ही कर रहा। तो गुरु साहब महाराज कहते भाई वो शोभा जिहड़ी है, ये जिहड़ी असीं पैसे दे नाल शोभा चाहुंदे आ ना, भी साडे कोल कोई पदवी आ गई जां साडे कोल पैसा है, गुरु साहब नूं पुछो कहते ये माया की शोभा 4 दिहाड़े जांदी बिलमना। ये 4 दिन दी है, पैसा अज है कल नहीं होएगा, हंकार खत्म हो जाता है बंदे का। गुरु साहब महाराज साडे ते कृपा करदे आ, कहंदे ओहदे मार्ग ते चलेगा। चले सी ना मार्ग ते बाबा दीप सिंह, मार्ग ते चले भाई महा सिंह का दिन भी अज, जिन्हां ने टुट्टी गंढी सी। बिदावा लिखना बहुत सौखा है कि गुरु साहब असीं तेरे सिख नहीं, तू साडा गुरु नहीं, पर बिदावा पढ़ाउणा उस तो भी औखा है, पर उन्होंने करके दिखा दिता। असीं भी तो लिख के बैठे हैं ना। बिदावा लिखना बहुत सौखा है, पर पढ़ाउणा बहुत औखा है। वो चले सी भाई मनी सिंह, भाई मती दास, सती दास, उन्हें चले अज दुनिया उस्तत करती है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 8 तीरथ सगल पुन। लोकी 68 तीरथां दे 8 ते 60, 8 60 तीरथ सगल पुन, सारे पुन कर ला, कुछ भी नहीं होएगा जे तू जीवां दे उपर दया नहीं करदा। गुरु कहंदे जी दया परवान। जीवां दे उपर दया करनी ही सतगुर दे दर ते परवान है। दया नूं महानता दित्ती गुरु साहब महाराज कि जे तेरे अंदर दया नहीं है, मता तू कही मैं धर्मी हाँ। जिहदे अंदर दया नहीं, बंदा धर्मी नहीं, पखंड कर रहा है। जिहदे अंदर दया नहीं है, अपने वास्ते नहीं है, अपने परिवार वास्ते दया नहीं है, अपने समाज वास्ते दया नहीं है, वो काहदा बंदा धर्मी है, पखंड करता है। गुरु साहब कह रहे धौल धर्म दया का पू। जे माई पैदा नहीं हुई तो बच्चा कित्थों पैदा? जे साडे अंदर दया ही नहीं है, धर्म कित्थों आ जाएगा? धौल धर्म दया का पू। जे सतगुरु जी ने सानू समझाया, कह दिता ना धौल धर्म
दया का पोत। जे हिंदू वीर नूं समझाया, उन्होंने आख्या दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। पहला तेरे अंदर दया होनी चाहिए। जे मुसलमान वीर नूं समझाया, उन्होंने भी आख्या मेर मसीत सिदक मसला हक हलाल कुरान। पहला तेरे अंदर दया होनी चाहिए है। आ पंज प्यारे दे नाम असी तरतीब वार लैने आ। सिख दा जीवन किदां दा होना चाहिए है, उहदे अंदर दया धर्म हिम्मत मोहकम साहिब, ये गुण सिखां दे गुरु साहब ने पाए आ। गुरु साहब कहते 68 तीर्थां का इशनान कर ला, सारे पुण्य कर ला, 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। पर किहनूं मिलदा नाम सिमरन, किहनूं नाम की दात मिलती? कहते जिसनूं देवे दया कर सोई पुरख सुजान। सुजान कहते सियाणा है, वो पतवंता है, जिन्हों सतगुरु कृपा करके ये नाम की दात बख्श, जिहदे अंदर दया बन जाती है। राज तो सारे करते आ, पर महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज किसी ने नहीं किया। कहते काल पै गया महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच, लोकी भुख तो मर रहे आ। महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा भी जिन्ना मेरे को खजाना है, जिन्ने भंडार हैं, तो ये भी तो प्रजा दे आ ना, ये लोगों दे आ। सारे भंडार खोल देते, जिन्ना जिन्होंने चाहिए लै जाओ, जिन्ना चाहिए लै। पर वो वास्ते भी तो दया चाहिए ना, भुगत दया पढ़ते ना रोज़ आप पढ़ते, तो वो जीवन के तो दया तो चाहिए है। तो कहते जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह ने एक काम शुरू कर दिता, एक छोटा जिहा बच्चा 5-7 साल का सी, भुख तो बिलक रहा सी। उत्थे लोगों को दसिया जा रहा सी, हुक्का दिता जा रहा सी, उहदे कन्नां विच आवाज़ पई कि महाराजा साहब ने भंडार के दरवाजे खोल दिते, जिन्ना राशन चाहिए लै जाओ, मेरी जनता सुखी रहनी चाहिए। हुण घर दे विच उहदे कोई नहीं है, उहदा दादा सी, बच्चे का बजुर्ग सी। उन्हें अपने दादे का हथ फड़िया, दादा चलो, महाराजा साहब ने सारे भंडार के दरवाजे खोल दिते आ, आप राशन लैके आईए। घरों चादरां लै लईआं, तुर पे। जदों पहुंचे ना महाराजा रणजीत सिंह दे उत्थे दरबार दे विच, जिथे अनाज का भंडार सी, चादर विछा दी, इन्ना भर लिया, घट्टो घट्ट 2 मन उसने राशन भर लिया, 2 मन। हुण चुक नहीं हो रहा। वो पोता भी 5-7 साल का, तो बजुर्ग भी 80 साल का। हुण एक सिख भज्जा ही आया नौजवान, वो कहने लगा बाबा छड्ड, मैं तेरे घर छड्ड के आउना हाँ, मैं तेरे घर छड्ड के आउना। अपने सिर ते पंड रख लई, तुरिया जा रहा है। वो बजुर्ग असीसां दे रहा है, असीसां दे रहा है। तो जिस वेले घर पहुँच गए ना, उस नौजवान का फिर धन्नवाद किया, पर उस बजुर्ग ने वह बांह फड़ के पूछा, बेटा अपना नाम तो दस जा। कहता मेरा नाम रणजीत सिंह है। ਇਹੋ दया राजे के अंदर दया। अजकल के ਜਿਹੜੇ राजे आ ना, वो कहते असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ही नहीं हाँ, घट गिनतियां ਨੂੰ ਤਾਂ खत्म कर दे दुनिया के विचों। इदां दे राजे नहीं। राजा जनक जिहदा गुरु ग्रंथ साहब के नाम आया, राजा जनक ते महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राजा कोई नहीं होया जिहदे अंदर दया सी। गुरु साहब कहते 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान, जिसनूं देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिन्हां मिलिया प्रभ अपना, जिन्हां परमात्मा की प्राप्ति हो गई, नानक तिन कुरबान, मैं उन्हां तो सदके जाना हाँ। आखिर विच साहब कहते माग सुच्चे से कांडी है, जिन पूरा गुर मेहरवान। जिहदे उपर पूरा गुरु मेहरवान है ना, वो सुच्चे हो गए। उन्होंने बाहरों धोण की जरूरत नहीं है। इशनान करना बहुत जरूरी है, शरीर नूं धोना। क्योंकि आप देखते ना कई पंछी जानवर कदे बरसात आवे तां ही नहाउंदे आ ना। मोर नूं कहने रोज़ इशनान कितना सोहना, मोर कितना सोहना है। आ किन्ने जानवर हैं, बदबू नहीं आउंदी उन्हां दे कोलों। पर बंदा एक दिन 2 दिन नहावे तो बदबू आना, ज़्यादा नहीं नहाएगा तो जुआं पै जाणियां। वो इसे करके नंगे घुमदे, सवा इसे करके लाउंदे सी शरीर नूं भी जुआं ना पै जाण, नहाउणा तां है ही नहीं असीं। गुरु साहब कहते ये भी नहाउणा जरूरी है, शरीर नूं धोना भी जरूरी है। पर सब तो वधिया सुच्चे तां होवोगे, आप कहने नहीं हथ सुच्चे नहीं, हथ धोने आ। सफाई अलग चीज़ है,
सुचम अलग है। सुच किहड़ी है? गुरु साहब कहते सुचे ये ना आखिए, पढ़ते ना तुसीं आसा की वार दे विच, सुचे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए। मैं भी शराब पी ली रात को, सवेरे नहा के गुरुद्वारे आ गए, असीं सुचे हो गए। अंदर विकार तो तेरे अंदर हैं, गलत काम कर लिया, ये नहा के असीं पाठ कर लिया, तो फिर वो पाप भी इकट्ठे, पाठ भी बराबर हो गया, तो वह कोई फायदा थोड़े है। कहते माग सुच्चे से काढ़िए जिन पूरा गुर मेहरबान। हथ धोण दे नाल कोई सुच्चा नहीं होना, शरीर धोण दे। सुच्चे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुच्चे सही नानका जिन मन वसिया सोए। माग सुच्चे से काढ़िए, काढ़िए का अर्थ होंदा कहे जाते हैं जिन पूरा गुर मेहरबान। जे सुच्चे होना है तो गुरु साहब कहते हैं, कई लोग ना कुरलियां करते हैं भी असी सुच्चे मूँह आ काम करना है। भाई सुच्चा मन हिरदा, गुरु साहब महाराज साडे ते कृपा करते आ, कहते सुची भई रसना नाम कहत गोबिंद का। ये सुची हो जाएगी जदों कुरलियां दे नाल नहीं सुची होनी, किसी पेस्ट दे नाल सुची नहीं होनी रसना, ये होएगी परमात्मा दे नाम दे नाल सुची हो जाएगी। सुची भई रसना नाम कहत गोबिंद का। गुरु साहब कहते भाई ये शरीर धोण दे नाल ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। अपवित्र असी उदन हाँ जिदन असी बाणी नहीं पढ़ते, नहीं शरीर इजाजत दिंदा ते 5 इशनाना करके बाणी पढ़ लो, अंदर तो धोता जाएगा ना। अंदर ज़्यादा मैल है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ शाह। गुरु साहब तक आप फैसला दे रहे हैं ना, सुच्चे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, शरीर धोण दे नाल नहीं, सुच्चे सही नानका जिन मन बसिया, जिन्हां दे हिरदे विच वसदा है। तो कोई अज दे दिन कोई अलग तीर्थ ते जाके इशनान करन दे नाल कोई मुक्ति नहीं होनी। जे मुक्ति हुंदी ते डड्डू ते मच्छियां पानी विच रहिंदियां हन। गुरबाणी का फैसला है जल के मजन जे गत होवै, नित नित मैडक नावे, जैसे मैडक तैसे ओ नर फिर जोनी आवे। गुरु साहब महाराज कहते अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछू ना पाइए, ना ही राम आना। लोगों ने जय जयकार करनी भी वाह वाह, ये 8 वारी तीर्थ चला गया, 10 वारी। गुरु माँ कहते बहुत तीर्थ भव्या ते तो लभया, बहुत भेक किया देही दुख दिया। अपने शरीर नूं दुख दे रहा है, नहाउणा है ते अंदर नूं इशनान करा। सतगुरु महाराज कृपा करते, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। क्योंकि मेरा गुरु नहीं चाहता, मेरा गुरु तो यह कहता है तीर्थ नहावां जे तिस भावां, बिन भाणे कै नहाए करी। मैं नहा के की करना, मेरे गुरु नूं नहीं पाउंदा, मेरे अंदर ही तीर्थ है। माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जाणिया, गुरु नानक साहब जी का शब्द, अंदर तीर्थ है। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल्ला। अंदर मैल है, वह साधन भी अंदर धोण दा। बहुत आप जी भागां वाले हो जो इस संगत रूपी सरोवर दे विच बैठ के अपने मन नूं धोण दा यतन कर रहे हो। गुरु साहब महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, साडे विच सतगुरु महाराज दे नाम दे नाल पवित्रता बन जाए, असीं सतगुरु दे दर ते प्रवान हो जाइए। पवित्र 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 पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। नाम जपण दे नाल ही पवित्रता। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।